It's my news wrap. लेट्स माइक न्यूज रैप में अब सुनते हैं दिन भर की अहम खबरें सिर्फ 10 मिनट में। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू ने कहा है कि भारत उन प्रमुख पर्यटन देशों में से एक है जो मालदीव को पर्यटन में मदद करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा से इसमें काफी वृद्धि होने वाली है। राजधानी माले में मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि मुझे विश्वास है कि इस यात्रा से दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी आदान प्रदान में काफी बढ़ोतरी होगी। Well, India is one of the major, tourism country that helps the Maldives with tourism, and definitely with Prime Minister's visit, it is going to increase a lot, and I'm sure people-to-people exchange between the two countries will greatly boost because of this visit. 26वां करगिल विजय दिवस देश भर में जोश और उत्साह से मनाया गया। 1999 के करगिल युद्ध में शहीद वीर जवानों को देश ने श्रद्धांजलि दी। करगिल के द्रास में वॉर मेमोरियल पर आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पुष्पांजलि अर्पित की और 3 परियोजनाओं का उद्घाटन किया। दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नेशनल वॉर मेमोरियल पर शहीदों को नमन किया। पूरे देश में स्कूलों और संस्थानों में समारोह हुए। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में इसरो प्रमुख डॉक्टर वी नारायणन ने बताया कि 30 जुलाई को शाम 5:40 पर नासा इसरो का निसार उपग्रह GSLV रॉकेट से छोड़ा जाएगा। इसमें इसरो और नासा के खास उपकरण हैं जो भारत और दुनिया के लिए फायदेमंद होंगे। उन्होंने गगनयान मिशन और 2040 तक चंद्रमा पर इंसान भेजने की योजना भी बताई। साथ ही निजी कंपनियों के PSLV रॉकेट से ब्लूबर्ड 2 मिशन लॉन्च करने की बात कही। From Indian soil, 102nd launch vehicle program from Indian soil. We are going to have the NASA ISRO synthetic aperture radar satellite launch using our indigenously developed GSLV Mark II vehicle, which is targeted on 30th of this month, evening 5:40. And this is a very, very important satellite. It has got 2 major payload. One is a S-band synthetic aperture radar, which is totally developed by ISRO. Our Ahmedabad office has developed, and there is a L-band SAR payload developed by JPL America, and both the payloads are assembled and made. We have made a satellite. Satellite is totally realized by ISRO. Satellite has lot of components other than the payloads, and we are going to launch using our 18th GSLV rocket, which is going to use the 12th indigenously developed cryogenic rocket engine. And this is going to give lot of benefit to the common man of the not only India, global community. And in fact, the satellite can cover the entire world once in 12 days. It can cover the entire world, and it is going to be used for multiple purpose, including earth observation and disaster warning and mitigation. Multiple purpose. It is going to benefit the common man of. It's a global community, the common man of the global community. Next major. कांग्रेस सांसद अभिषेक मनु सिंघवी ने दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जस्टिस वर्मा और जस्टिस यादव के मामले में बीजेपी का गुस्सा और चुप्पी चिंताजनक है। उन्होंने कहा कि पूर्व उपराष्ट्रपति धनखड़ का देर से ही सही स्वतंत्र होने का प्रयास ही उनकी गलती रही। सिंघवी ने जस्टिस यादव पर सरकार की चुप्पी पर सवाल उठाए। We are also very concerned, friends, about this selective outrage and selective silence on the Verma Yadav 2 judges issues. Justice Verma, Justice Yadav. This is typical BJP's double standard, and yet another example of BJP and the Modi Sarkar's theatre of the absurd. The BJP's game of motions, they made it into a game of shadows and a game of motions, is less about law and more about optics. A desperate dance to distract and dominate. And how petty a dance to distract and dominate. Our house Lok Sabha first, not you Rajya Sabha. Out you go, Mr. Vice President. बिहार में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का कहना है कि अगर एक भी मतदाता वोट नहीं डाल पाता तो कांग्रेस सवाल उठाएगी। मुर्शिदाबाद में मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि चाहे मतदाता 14,000 या 16,000 फीट की ऊंचाई पर हो, चुनाव आयोग को उनके वोट का अधिकार सुनिश्चित करना चाहिए।
एक भी वोटर अगर वोट देने में असमर्थ रहे तो कांग्रेस की ओर से ये सवाल होते रहेंगे। आपको शायद जानकारी नहीं है, हिंदुस्तान में 14,000 16,000 सीट पे भी अगर एक वोटर रहते तो उनके पास निर्वाचन चुनाव आयोग को पहुंचना और वोट डलवाना उनसे ये फर्ज बनते हैं। यही हमारा खूबिया है। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के कार्यकाल पर टिप्पणी करते हुए कहा कि पीडीए परिवार विकास एजेंसी पूरी तरह फर्जी है। वो 2012 से 2017 तक मुख्यमंत्री थे और अगर उन्होंने किसी पर सबसे ज्यादा अत्याचार किया तो वो ओबीसी, दलित और गरीब थे। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी का पहले तो पीडीए यानी परिवार डेवलपमेंट एजेंसी पूरी तरह से फर्जी है। 2012 से 2017 तक वह स्वयं मुख्यमंत्री थे और सबसे ज्यादा दमन अगर उन्होंने किसी का किया था तो पिछड़ों का किया था, दलितों का किया था, अगड़ों का किया था। उनकी सरकार से के कार्यकाल को अगर याद करो तो लोगों को भय से कांपने लगते हैं, क्योंकि श्री अखिलेश यादव जी सत्ता केवल गुंडों के लिए, अपराधियों के लिए, माफियाओं के लिए, दंगाइयों के लिए, भ्रष्टाचारियों के लिए पाई थी। लेकिन जब उन्होंने यह अत्याचार किया तो 2017 में उत्तर प्रदेश को प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के हाथों में सौंपा और यह तय कर लिया कि अब 2047 तक सपा का कोई भविष्य नहीं। सर, आप लोगों ने श्रीनगर में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने एक कार्यक्रम में बताया कि जम्मू कश्मीर और राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण ने 4 नई योजनाएं शुरू की हैं। उन्होंने कहा कि वंचित वर्गों के अलावा सैनिकों और आदिवासी समुदायों को भी न्याय और सहायता की जरूरत है। उनके लिए किया गया हर प्रयास महत्वपूर्ण है। ये पहल समाज के कमजोर वर्गों को सशक्त बनाने में मदद करेगी। वर्ष 2025 के दौरान अब तक जम्मू कश्मीर लीगल सर्विस अथॉरिटी के विभिन्न कानूनी सहायता योजनाओं के अंतर्गत लगभग 12,000 से ज्यादा लोग लाभान्वित हो सके हैं। मैं समझता हूं वंचित वर्गों के अलावा हमारे समाज के 2 अन्य महत्वपूर्ण वर्ग हैं जिन्हें विशेष रूप से आवश्यकता थी। पंजाब के अमृतसर में पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने अमृतसर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि 4 तस्करों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें सरगना सरबजीत जोबन भी है। इनके पास से 6 किलो से ज्यादा हेरोइन बरामद हुई। हमारे माननीय सीएम साहब के जो युद्ध नशा विरुद्ध प्रोग्राम है उसमें कमिश्नरेट पुलिस अमृतसर को बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। हमने 4 बड़े स्मगलर्स अरेस्ट किए हैं। 6 केजी और 106 ग्राम हेरोइन उनसे रिकवर हुई है। सरबजीत जोबन उनका किंग पिन जो है वो सामने आया है। ये काफ़ी देर से इंडियन साइड पे भी इसने लोकेशंस आइडेंटिफाई करके कंसाइनमेंट्स ड्रॉप करवा रहा था और इसके पाकिस्तान बेस्ड स्मगलर स्पेशली राना जो कि एक बड़ा नोटोरियस स्मगलर है उसके साथ भी इसके काफ़ी लिंक्स सामने आए हैं और इन्होंने वेपन्स और हेरोइन दोनों की कंसाइनमेंट्स काफ़ी रिसीव करके आगे डिस्ट्रीब्यूट की हैं। और इसके 2 साथी जो हैं वो अजनाला सेक्टर के रहने वाले हैं, उनको भी गिरफ्तार किया गया और एक जुवेनाइल था इनमें चौथा, उसको भी हमने गिरफ्तार किया है। उधर उत्तर प्रदेश के आगरा में भी धर्म परिवर्तन के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस कमिश्नर दीपक कुमार ने आगरा में मीडिया को बताया कि अब तक 14 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। जांच में पता चला कि पाकिस्तान के प्रभावशाली लोग माइक्रो ब्लॉगिंग और अन्य ऑनलाइन साइटों के जरिए पीड़ितों को धर्म परिवर्तन के लिए उकसा रहे थे। देखिए, जो हमारी अभी तक की हम लोगों की जो जांच है उस जांच में अभी तक हम लोगों ने 14 लोगों को गिरफ्तार किया है और इनमें से जो बातचीत जो हमारे जिन लोग जो विक्टिम है, विक्टिम से जो बातचीत की गई तो विक्टिम ने अपनी बातचीत में स्वीकारा कि जो जितने भी हमारी विक्टिम थी उन लोगों को जो प्रीच देने वाले लोग थे वो सब पाकिस्तान के जो इन्फ्लुएंसर थे और वहाँ से जो डिफरेंट जो माइक्रो ब्लॉगिंग साइट्स पर और मीडिया जो डिफरेंट और मीडिया के साधन है उसके द्वारा इन लोगों को प्रीच करते थे, इन लोगों को इस्लामिक शिक्षा देते थे और इन लोगों को धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित करते थे। अभी तक जो हमें को पता चला है जिसमें कि हम लोगों ने नाम बताया कि 3 इन्फ्लुएंसर ऐसे थे जो कि इनको धार्मिक ये शिक्षा देते थे और दावा के द्वारा इस्लाम में आने के लिए, इस्लाम धर्म में शामिल होने के लिए इन सारी जो बच्चियां थी, बालिकाएं थी,
इनको उन लोगों ने प्रेरित। न्यूज रैप में फिलहाल इतना ही। बने रहिए लेट्स माइक के साथ।